Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, वेलकम टू कॉमन इंडियन वॉइस। इलेक्शंस की खुशी हम लोगों की खत्म ही नहीं हो रही है, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु वांट टू स्पीक, who want to talk about their happiness, who want to say a few words about share their views about the analysis they have done. And हम लोग टीवी में जो देखते हैं वो तो बड़े बड़े बिग शॉट्स होते हैं। जैसे मेरा चैनल है, मेरे चैनल तो कॉमन इंडियंस के लिए है, जो लोग एक्चुअली जाके वोट देते हैं उनके लिए है, तो उनकी व्यूज तो सामने आना ही चाहिए ना। हम लोग बिग शॉट्स नहीं है, एंड छोटे छोटे हम लोग खुश है क्योंकि हमारे हम अपने एक प्लेटफॉर्म है हमारे लिए जहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं। सो आज हमारे साथ कविता तिवारी जी है। नमस्कार कविता जी। नमस्कार। विदिशा बैनर्जी, फायर ब्रांड। हेलो। नमस्कार विदिशा। हेलो, नमस्कार। नमस्कार। विदिशा कहाँ से है? विदिशा इज फ्रॉम कलकत्ता। ओके 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 ओके। सो विदिशा, what are you feeling right now? 4 out of 5. It is huge, because if you remember the previous conversations we had, we were having the space, let's not be confident about UP, we don't know. And when you watch the television debates, you're a little, worried somewhere, it may not happen and nobody ever comes back in UP for the second term. So we were like a little worried. But yes, thumping victory, 4 out of 5. Excellent. And the drubbing that she got in Goa is also very exciting. That's the cherry on the sundae. So that's... Yeah. Okay. I have a request. When like Vidisha, you know it, Kavita, because it's the first time. Kavita जी, जब दूसरे बोलेंगे ना तो म्यूट कर दीजिएगा, नहीं तो फिर वो साउंड ये हो जाता है। अब मेरा क्वेश्चन कविता जी आपसे है, कैसा लग रहा है? अरे बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम सेलिब्रेटिंग। कल से आज जितने हमारे घर में काम करते हैं उनको पार्टी दी हमने, चाउमीन, मोमोज, कोई ड्रिंक, और कल से हम क्या बताएं। पंजाब का तो ऐसा कभी बीजेपी पिक्चर में था ही नहीं ना, तो पंजाब का लूज का हमको कोई ज्यादा नहीं हुआ है। पंजाब तो कभी पिक्चर में था ही नहीं, 4-5 अकाली दल के उसमें। लेकिन योगी जी आए तो जान में जान आई है। आई एम सो हैप्पी कि 5 साल के लिए 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी, ऑल थिंग, सेफ्टी, डेवलपमेंट, ऑल थिंग। तो आई एम वेरी हैप्पी। बता नहीं सकते, इतने खुश हैं, बता नहीं सकते, क्योंकि आई हैव ओनली 2 ऑप्शंस ना। वन इज Kolkata and other is Kanpur. So Bengal already spoiled and UP is my future now. So I am very happy. Absolutely. अब थोड़ा सा सीरियस क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं। कविता जी प्लीज म्यूट कर लीजिए आपका। म्यूट कैसे करें? देखिए लेफ्ट साइड में एक ये है। हाँ, उसको म्यूट कर लीजिए। थैंक यू। Vidisha, now to some serious questions. सबसे ज्यादा सरप्राइज आया उत्तराखंड का रिजल्ट। सभी ज्ञानियों ने, सभी लोगों ने बोल दिया था कि उत्तराखंड मोस्ट प्रोबेबली कांग्रेस ले जाएगा। सो आपको क्या लगता है कि उत्तराखंड में क्यों वापस आए? You see, what is happening is people are not only voting for their state, people have learned to look at the bigger picture. And I think this evacuation that happened of the student, everything played on people's mind, because they are now looking at a government, not only on the state level, they are also looking at the national level. And as the BJP said, double engine Kagari. So this is what is very important, that if my state and the center has the same government, it will only benefit us. If you see, the CM has lost. Right? The CM has lost his seat, which means they are unhappy with this, but not with the party, not the way the
they were running the state, or they were unhappy with a particular individual. So he's lost. But Sorry, Vidisha, I'm just cutting you because as far as I have known, I don't know, they are unsubstantiated, but it seems that there was a person from BJP who was actively working against the CM. And even it seems he has financed people. So it was an internal issue. We had that in Bengal. I may be wrong. No, you're right. It happened in Bengal. You see, Bengal, before the Vidhan Sabha elections, they say that the soil was fertile. All BJP Bengal had to do is just put the seed. It was just ready. But what happened, I don't want to take names, but there are certain leaders who came here to help the poll process. Instead of giving tickets to people who know the public, who have worked with it and prepared the ground, they took in film stars, starlets, and all that and started giving tickets. Who were partying with the Trinamool guy, Madan Mitra to be precise, 5 days before the election. Now tell me, if you have put somebody in my constituency who is partying with the opposition, will I go and vote for the person? I will not. So this is what happened in Bengal. So I can understand very well that this is highly possible. So keep Bengal aside, but I guess that is what happened. But as I said, this will happen. People have now realized beyond, enough of Muslim, Hindu, upper caste, lower caste. People have realized since 2014 that BJP only means development, whether it's road, whether it's health, whether it's education. And it's not like people used to say, I am an American anywhere in the world and you would be protected. Now you can actually go and say, I'm an Indian, and the Indian embassy will help you. So that confidence is coming. If you can stop a war for 6 hours to evacuate your people, that's the power of the government I want. And that's the government I want in my state too. So I think people have moved beyond those, typical definition of caste and creed and religion. Ye nahi chalega. And not anymore. Not anymore. I think that is the reason. Absolutely, I agree. I agree completely. Kavi ji, I want to ask you one thing. मैं आपसे एक चीज पूछ रही हूँ. जैसे बहुत ज्यादा दुष्प्रचार हुआ, बहुत ज्यादा फेक न्यूज आए, बहुत पोलराइजेशन का दोष जो है बीजेपी पे लगता गया, मगर बीजेपी ने कभी नहीं बोला कि हिंदू हमको वोट करो. ये पोलराइजेशन दूसरे कर रहे थे, दोष डाल रहे थे बीजेपी पे. मगर इतना कुछ करने के बाद भी इलेक्शंस तो हार गए. तो मतलब एंड आप इससे लोगों को क्या, सब जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको क्या सीखना चाहिए? एक्चुअली है क्या, कास्ट वाला जो यहाँ पे जो था पोलराइजेशन, कास्ट वाला भी तो यूपी में बहुत था ना. अभी से इस कास्ट को देना है, ये कास्ट उसी को देना है. मतलब कि विलेज में जो पंचायत जिसको कह देता है, जो होता है पंचायत का जो हेड होता है, वो जिसको कह देगा पूरा विलेज उसी को वोट देता है. लेकिन अब की बार ऐसा नहीं हुआ. अब की बार वुमेन्स भी थे, जो वुमेन्स की तरफ से काफी मतलब मोदी जी को, योगी जी को वोट गया. और जो कास्ट वाला चक्कर वो तो बिल्कुल खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म ही कर दिया. और देखो मायावती को देखो कुछ नहीं मिला. इसी से पता चलता है कास्टिज्म बिल्कुल यहाँ पे खत्म हो गया. सब डेवलपमेंट पे वोट हुआ है. और कम्युनल पॉइंट पे अगर आप देखो तो अखिलेश जी ने साफ साफ बोला था कि मुस्लिम वोट हमको दे. ओबीसी भी आया था यहाँ काफी पोलराइज करने. तो थोड़ा सा तो डर था, 2-3 सीटें मतलब ओबीसी ले जाएगा, क्योंकि इसने गुजरात में और बिहार में 2-3 सीटें ले गया. लेकिन बाद में पता चला ओबीसी का भी कुछ नहीं हुआ. तो एक्चुअली यूपी में लीडर्स को भी देखना चाहिए. अब बीजेपी को क्या करना चाहिए, बाकी पार्टी का तो हमको नहीं पता. बीजेपी को अब करना चाहिए जो अखिलेश के पास जो हिंदू वोट जो अभी भी है उनको कैसे अपने तरफ लाया जाए. ये देखो एमएलए का काम है. मोदी जी को थोड़ा एमएलए को टाइट करना पड़ेगा. हम लोगों ने जिस दिन वोटिंग थी कानपुर में, उसके 1-2 दिन पहले एक स्कूल है यहाँ पे आरएसएस का, वहां मीटिंग किया था हम लोगों ने. तो उसमें जितने एमएलए थे आए थे सब. तो उन लोगों के जैसे सब लोग भी आए थे, सब आरएसएस वाले थे, बीजेपी वाले. तो उन लोगों का वही था कि भाई आप काम नहीं करते हो. हमारे यहाँ 2-3 थी, नीलिमा कटियार थे, कुछ थे, कि आप लोग काम
नहीं कर, 5 साल में आए भी नहीं थे, कोविड में भी नहीं, लेकिन हम लोगों ने उनको बार बार एक ही बात बोला कि आप लोग प्लीज इसको बाद में देखना, अभी आप लोग को योगी जी को ही कमल पे ही बटन दबाना, चाहे कुछ भी करके, मतलब योगी जी को लाना है तो 50 में लाना है, तो हाथ जोड़ जोड़ के सबसे बोला। और लीडर्स को फिर बाद में हम लोगों ने अल्टीमेटम दिया कि आप लोग बाद में आप लोग से बात करेंगे, आप लोग काम करते, कुछ तो करते काम, कुछ बिल्कुल नहीं करते। तो मेरा बस थोड़ा सा ये कंसर्न अभी भी ऐसा कि बीजेपी की जो लीडरशिप है वो 2-3 आदमी के ही ऊपर डिपेंड है, और मोदी जी के ऊपर ये लोग बहुत डिपेंडेबल है। मोदी वेब में ही सब निकल जाता है, और योगी जी ने भी बहुत अच्छा काम किया, यूपी 5 इयर्स में काफी ट्रांसफॉर्म किया है, तो उसके वजह से भी बहुत वोट हुआ है। लेकिन लीडर्स जो यहाँ के हैं, जो लोकल लीडर्स, वो हमारे यहाँ से जो है बीजेपी नहीं जीतती है, वो यहाँ से मुस्लिम वोट वो जीता है, लेकिन वो सिटिंग एमएलए है, वो काम भी करता है, तो सारे मुस्लिम वोट उसी को गया है। तो हमारा कंसर्न बस यूपी बीजेपी के लिए हम कह सकते हैं, जो अभी भी जो लोग हिंदू जो मतलब समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा कैसे करके लाया जाए, ब्रेन वॉश करके, हम लोग का भी काम है थोड़ा, तो इनको कैसे करें। और पंजाब में थोड़ा ग्राउंड लेवल बढ़ाना है, बंगाल में तो बढ़ाना है ही, बंगाल में तो हम अभी भी कहते हैं अगर हमारे पास 80 से बिलो सीट था, 77, तो अभी भी कोशिश करें, अभी से स्ट्रॉन्ग रूट में काम हो थोड़ा सा, तो अगली बार भी हम लोग ला सकते हैं गवर्नमेंट। लेकिन यूपी का थोड़ा सा अखिलेश का, कविता जी आपका हेड कट हो जा रहा है। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, नहीं फाइन, अच्छा ठीक है। तो हमारा कहना वही है कि पंजाब यहाँ पे यूपी का तो ऐसे अभी जैसा अगर रहेगा वो तो ठीक है, अब लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं अभी, लेकिन वही है कि अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे घर के आसपास है, जब हम काम मतलब पूछने जाते थे तो उनका एक ही कहना था, शाम को बिरयानी खाने मिलेगी, इरफान सोलंकी जीतेंगे, मतलब समाजवादी पार्टी को ये वोट देना है। तो उनसे पूछो तो कहते नहीं हम तो उन्हीं के हैं, जैसे हम लोग वक्त है तो वो भी चमचे है, वही चक्कर है ना। हम लोग भी जैसे मोदी जी का कोई चीज अपोज नहीं कर सकते, लेकिन मोदी जी लीडर है, मतलब जीनियस लीडर, उनका अपोज हम लोग कर भी नहीं सकते। कहाँ अखिलेश जी, तो अभी भी कुछ जो ऐसे लोग हैं तो उनको थोड़ा सा कैसे मेन स्ट्रीम में लाना है अभी, तो वो एक पॉइंट है हमारे लिए बहुत कंसर्न का, कि अभी वो तो उसके लिए थोड़ा सा काम करना पड़ेगा यूपी में स्पेशली, क्योंकि अभी भी बीजेपी देखो साउथ में नहीं है, ये भी थोड़ा सा हम लोग को कंसर्न करना है। कर रहे वो देखिए, एक बात है ना, साउथ में मेन प्रॉब्लम क्या हो जाता है, लैंग्वेज का एक बैरियर आ जाता है, लैंग्वेज का बहुत तो उसमें, एंड कांग्रेस पहले से ही था, तो कांग्रेस का जनादेश पहले था, मगर धीरे धीरे कांग्रेस को भी साउथ ने आउट कर दिया है, तो होगा, उसका तो कंसर्न नहीं है। विदिशा, टेल मी वन थिंग कि हाउ मच डू यू थिंक इज द the blunder of Akhilesh which led to the victory, या will you say कि योगी जी, this was a vote for योगी जी, क्योंकि पहली बार वोट योगी जी के लिए नहीं था, he was not declared, इस बार वो डिक्लेयर्ड थे, तो ये वोट फॉर इट्स अ इनकम्बेंसी, एंटी इनकम्बेंसी छोड़ दो, इट्स अ वोट, इट इज अ वोट फॉर योगी जी, serious vote for योगी जी। First, I'll tell you, there was this little clip that I saw on Akhilesh. He was in a rally or somewhere. He said, "मैं तो टीका BJP COVID टीका नहीं लगवाऊंगा." When, I mean, my Hindi is bad, sorry. He said that he will not. He's calling it a BJP, vaccine. And when he comes to power, they'll have. So first, I think this shows what a poor leader is he. Instead, he would have said that this is an Indian vaccine and people should go for it and take it. So that shows, the thought process. When you have small people, small thoughts like this, they can never be a big leader. Second, when it comes to Yogi ji, he has created, he has a, the full history. If you see, he was there, Gorakhpur, he was constantly there, and people have seen his work. Now, when he became the CM, this 5 years, he can actually put it out saying 1, 2, 3, 4, this is the achievement. And somewhere deep down, the majority of the Hindus or BJP voters are looking at him as a future PM of this country. Now, what do you look at it? We have realized that when you don't, people like
why is Modi so famous? He will not steal because he doesn't have a family to leave it behind. ना अपने बच्चे के लिए, पोते के लिए, पोते के पोते के लिए पैसा रखना है. There is not there. So Yogi ji brings that to the table. You know, he is a monk who has very little requirement. He's not into any, you know, any pleasure or anything. Secondly, he's an educated person. He is an MA in mathematics. I think he's a master's in mathematics. So that is a huge thing, huh? And he is a young man. He is younger than the youth icon of India. So and he has over and over again proven himself as a good leader. I've never seen him lose his temper. I've never seen him being abusive. I have never seen him. When you talk to him, he's always smiling. He's always calm. The signs of a great leader. So I think this election is going to pave the way for, people asking after Modi, who? After Modi, Yogi. So I think this election was to establish that. After Modi, who? Maybe the second, Modi will have a third term. But after that, we have Yogi. And he's getting prepared. So Absolutely, I think that's it. कविता जी, आप यूपी से हैं, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है. हमने देखा है कि वोटिंग परसेंटेज धीरे धीरे पश्चिम से जब वो पूर्वांचल की तरफ आया, वोटिंग परसेंटेज कम हो गया. एंड उसमें ये प्रूफ हुआ कि हिंदू जो है वो बाहर नहीं आया. तो क्या आप कॉम्प्लेसेंट हो गए थे कि वो लोग कंफर्म हो गए थे? ये जो प्रोपागेंडा चलता है टीवी में कि योगी जी ऑलरेडी जीत चुके हैं, तो लोगों में क्या कॉम्प्लेसेंसी आ गया था कि भाई वो तो जीत ही गए, हम वोट करें नहीं करें फर्क नहीं पड़ता? आपको नहीं लगता है कि ये बंद होना चाहिए? ये अच्छा, इसका मैं पता नहीं है कि पूर्वांचल में आके परसेंटेज कम वहां थोड़ा सा हो गया था. लेकिन एक चीज ऐसा ये भी देखो कि यूपी के ज्यादातर बच्चे बाहर रहते हैं. ये भी बहुत, जैसे हमारे बेटे को छुट्टी भी नहीं मिली थी आने के लिए, तो उसकी छुट्टी, उसका मेरी बेटी का कॉलेज से भी नहीं छुट्टी मिला. 2 वोट तो हमारे फैमिली से चले गए थे. तो ऐसे कुछ हो सकता है कुछ लोग थोड़ा सा अभी भी वही पिकनिक के स्टाइल में रहते होंगे, कौन जाएगा, योगी जी तो जीतेंगे. लेकिन पूर्वांचल का आपके अच्छा स्वीप दिया है, जो रिजल्ट आया पूर्वांचल का. तो 3 फेज जो आया था उसमें तो हम लोगों ने जो एनालिसिस किया था 4 फेज तक में, तो 192 तक ही था. उसके बाद जब पूर्वांचल में वोट हुआ है तो उसमें तो काफी अवध में, इधर मथुरा में तो अच्छा मतलब लेके गई है. लेकिन कम हो सकता है इसलिए भी कि वहाँ मुसलमान मेजर कम है वहाँ, ये भी हो सकता है. क्योंकि इलाहाबाद वगैरह में, प्रयागराज में, बनारस में मुसलमान कम है, कानपुर में बहुत है जैसे, तो ये भी कारण होता है. मतलब थोड़ा सा. और मेन देखो ऐसा यूपी का क्या है, यूपी के आधे लोग बहुत ज्यादा जो विलेज के ये सब लेबर क्लास ही बाहर काम करते हैं. तो ये लोग एक दिन वोट डालने के लिए इतने कॉन्शियस अभी भी नहीं है कि आके यहाँ पर वोट डाले, इतना पैसा खर्च करके कौन आए. तो ये भी एक यहाँ का कारण है कि बहुत सारे लोग बाहर नौकरी करते, क्योंकि यूपी अभी तक यहाँ पे कोई वो था नहीं ना, कुछ कोई इंडस्ट्री नहीं थी, कुछ नहीं था, कोई जॉब नहीं था, वही फ्री बीज लॉलीपॉप दे कन्यादान और ये सब. अब जैसे यहाँ पे थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, ऑफिस अच्छे योगी जी कर रहे हैं, अब यूपी के लड़के के लिए यहाँ फ्यूचर है, तो अब यूपी के लोग नहीं जाएंगे बाहर. लेकिन अभी तक जो बच्चा पास आउट होता था हमारी फैमिली से, जो पास आउट हुआ वो सीधे नोएडा, दिल्ली. तो ऐसे मतलब हर ऑल्टरनेट फैमिली में जो बिजनेस क्लास भी है, सर्विस क्लास भी है, तो थोड़ा सा ये भी हमें लगता है काउंट होता है. हिंदू जब हम लोग वोट डालने गए तो वहां भी हमने देखा था हिंदू लोग कम थे, मतलब एजेड लोग थे, यंग जनरेशन कम था. गर्ल्स थी लेकिन बॉयज नहीं थे. Okay, that is a factor. That is also a factor. That's a matter, क्योंकि अभी तक यहाँ कोई काम नहीं था यूपी में. अब जैसे बहुत फैक्ट्री बन रहा है, काम और आधा मजदूर बाहर, तो मजदूर को भी, हाँ, दिस इज अ वैलिड फैक्टर. अब तो काम भी हो रहा है, मजदूर को भी यहाँ काम मिल रहा है. तो शायद मतलब हमारे जो बड़े चैनल्स वगैरह है वो लोग ये बात करते नहीं है, तो उनको भी ये बात करना चाहिए. द नेक्स्ट क्वेश्चन, विदिशा, आई वांट टू आस्क यू, Modi ji, everyone is saying that Modi ji is changing the politics of India. Now, it is no longer caste, it is no longer religion, because, in previously it was it was like you can say it was a said conclusion, gone, pre-concluded that wherever the Muslims are voting,
that party is going to win. But in spite of the fact that maximum Muslims have voted for SP, yet the myth has been destroyed. Yet Yogi ji and Modi ji won. And now the fact which the people are seeing is how you have delivered. Because हमने इलेक्शंस शुरू होने के पहले हमने देखा डिलीवरी हो रहा था, हमने प्रॉमिस किया था, हमने ये किया. सो वो जो सिनेरियो चेंज हो रहा है, क्या जो पॉलिटिकल पार्टीज है, क्या वो लोग पीछे पड़ जा रहे हैं? They are not able to keep up with Modi ji. Yeah, they are still in their fool's paradise, and they still think that abusing Modi ji. जैसे राहुल गांधी went into UP, and the first thing, Modi ji झूठ बोलते हैं. अरे people are over there think of him as an elderly person of the family. ये बात समझ में नहीं आ रहा है. Do you think this is the reason why कांग्रेस तो पूरी डेसिमेट ही हो गई है? 2% वोट मिला है कांग्रेस को, and no one is ready to set their houses in order. I think you've brought in a very valid point. It is true. The elections are now fought on development, on work, what has been promised and what has been delivered. See, when we keep saying, people like us who support Modi ji, say, so many things people are saying, why doesn't he answer? Why doesn't BJP come up and say something, take out a statement? But as a policy, they don't, because they know their work will speak, and this is the result. And I have a belief, I may be wrong, that no matter what, not all Muslims vote against BJP. This can't be the result. If it has, then UP, this wouldn't have been the result. Maybe they say we are voting for SP or whatever, but somewhere deep down they go and press it on, the lotus. I have a strong feeling. Otherwise, the result would have been like Bengal, where we have, maybe the second largest Muslim population after UP. So I think not all Muslims in UP vote for SP or are against BJP. Because you see, when development happens, it touches everybody's life. When the road happens, when electricity comes, when there's toilet, when there's health, education, everything improves. It touches all our lives. I can't say it only touches the Hindu and bypasses the Muslim or only the Muslim. You see, previously the political parties did that. What they did, keep the poor and the uneducated poor and uneducated and give them doles, and they will vote. Now you and I have 1 kg each, they have 4. So usko de do thoda, mahine mein 500 rupees, they'll come and vote for me. But keep them uneducated and poor. If you remember the famous dialogue on Satyajit Ray's Hirak Rajat Deshe, era joto pore, toto beshi jane, joto beshi jane, toto kom mane. Very aptly said. Though this was meant for Congress then, because, Satyajit Ray was a little pro-communist. So the fact is that this is the thing. That's what they did. That's what Congress did for years. That's what all of them do. But Modi ji has turned the table. Now, these guys have not pulled up their socks. They are not learning from Modi ji or from, BJP, that you need to uplift everybody. Once you uplift everybody, you will win. But they have the fear, because you see, they are incapable. Now, unke paas wo vision hai dekne ka, ki if I make 10 roads now, or I build another airport, or I build a factory here, in future, this will give me. They are looking for immediate success. Election ke pehle 500 de do, they'll go and vote for me. Before the next election, they are running like headless chicken. The money that Didi spends on the club, if she spends on developing road, on education, better pay for the government teachers, she will eventually gain. And I'm telling you, but that thought process, you see, you have to think like a leader. You have to think for the upliftment. A leader is about to uplift the people he is, leading, which Modi ji is doing successfully. To him, it is the image of India. It is Indians. You are not a Muslim. You're not a Christian. You're not a Hindu. You're nothing. You are an Indian who needs all the basic requirement that can give you the. You see, he doesn't believe in giving you doles, not 2,000 rupees, not 1,000 rupees. He says, I will give you the skill so that you can earn 4,000 rupees every month henceforth. I will teach you the skill for free, and you go and earn your money. And what the others are saying, I will give you 500 rupees a month.
Lokki Bhandar, I will give you 5,000 rupees a month. So I will make you a beggar. Basically, I'm making you a beggar. You know, Mufat ka paisa. And Congress did that before the election. If you remember, 2,500 rupees per month to every family or whatever Rahul was saying. So you are a beggar. I will keep you a beggar. I will not give you the skill to, go and earn that money. Because, Vijay, the more you know, the less you will follow. But Modi ji knows when I make them independent and self-sufficient, they will vote for me. So that is the difference, and that is exactly what Yogi ji is doing. So I'm telling you, the oppositions are actually killing themselves. They are shooting themselves in the foot. They either learn or they are going to be disseminated, and they'll be. It is because of not Modi ji or BJP. It is because of themselves that India is heading to an opposition-less future. So it's high time that they have to learn. Absolutely, absolutely, I agree. Kavita ji, क्या opposition बार बार मोदी जी को समझने में गलती करने के वजह से वो क्यों क्या कर रहे हैं वो नहीं समझ के खुद ही अपना दुश्मन बन जा रहे? क्या उनको मोदी जी समझ में आ रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है कि वो मोदी को नहीं समझ रहे। मोदी अभी के तो नहीं है ना। मोदी को समझना है तो किसी को गुजरात से समझना पड़ेगा ना। वो अभी के तो नहीं है। उनको अगर किसी को समझना है तो गुजरात से उनका हिस्ट्री देखो, कैसे कार्य वॉलंटियर से वो आदमी कहाँ पहुंचा है, कैसे पहुंचा है, तो वो समझते सब है। लेकिन एक पावर हंग्री है, वो उनको अपना डायनेस चलाना है, सबको चलाना है। लेकिन अभी मोदी जी ने, जैसे विदिशा ने कहा, सब खत्म कर दिया। जैसे यूपी ने देखो, जैसे वायनाड में हुआ था, 72,000 रुपीज राहुल ने जो वो किया था, डिक्लेयर किया था, उसके पीछे राहुल जीत गए थे। जो न्याय जो का वो बोला था न्याय होगा, लेकिन वही मोदी जी ने 6,000 रुपीज बस फार्मर को दिया था पर ईयर। तो यूपी का एक तो बहुत अच्छा मैसेज किया है कि बिजली फ्री, पानी फ्री और स्कूटी और ये देना, और 5 लाख रुपया 5 लाख फॉर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मतलब मुफ्त में इलाज होगा। तो ये कांग्रेस की तरफ से जितने थे सबको हटा के सेल्फ रेस्पेक्ट से, गरीब है 2 रोटी खाएंगे लेकिन हम मोदी जी को वोट देंगे, योगी जी को वोट देंगे, अपने आप काम करेंगे। तो जो एक मैसेज गया ये यूपी से, जो पंजाब में नहीं हुआ है, ये चीजें यूपी के लिए बहुत अच्छा हुआ है। तभी देखो यूपी से, अमेठी से भी आपकी कांग्रेस गया, और रायबरेली जो सोनिया जी का वो था वो भी बिल्कुल खत्म हो गया। एक बात हम विदिशा जी से थोड़ा डिसएग्री करेंगे, क्योंकि मुसलमान, हमें नहीं लगता है कि यूपी का कोई मोदी जी को वोट देता है। मेरे बहुत टेलीफोन से बात होती है, मेरे फ्रेंड हैं, दे आर बिलियनियर्स, इतना पैसा है, लेकिन वो कहते हैं गुजरात के बाद मोदी जी को हम लोग माफ ही नहीं कर सकते हैं, वो चाहे कुछ भी करें। तो वो कहते हैं कि योगी जी भी गुंडा है, तो वो तो योगी जी को भी कहते हैं कि वो बहुत बड़ा गुंडा है। तो वो तो उनके लिए भी ऐसी ऐसी बातें करते हैं। और राशन की दुकान में भी, जैसे मेरी काम वाली काम करती है, मैं से हम पूछते हैं वहां तुम लोग जो डिस्कशन होता है, वो लोग कहते हैं हमें राशन मिलता है, वो बाद में हमारे गले से योगी जी निकाल लेंगे। ये उनका लैंग्वेज है। तो अभी भी तुम देखो, इस बार जो इलेक्शन का रिजल्ट आया है उसमें 67 मुस्लिम लीडर जो है एसपी की तरफ से जीत के आए हैं। लास्ट टाइम में वहां पे 47 अपना था, बीजेपी का था। अब की वो जाके हो गया 67, उनके पास चले गए। उसमें अतीक कौन है, अंसारी और ये हामिद, जो लोग हैं जो जेल में है, वो भी जीते हैं। आजम खान वगैरह जो जेल में योगी ने डाला है, तो वो कैसे जीत के आए? तो तुम मुस्लिम की मेंटेलिटी समझो। तो कांग्रेस का वोट जो था, मायावती का वोट जो था, ओबीसी का, तो सारा एसपी के पास चला गया है। तो इसी वजह से इन लोगों ने सोचा कि एसपी को वोट दे तो ये तो हमारे लिए काम करेंगे ही करेंगे। तो वैसे भी कविता जी, मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट कर रही हूँ, क्योंकि जाटव वोट जो है वो बीजेपी को शिफ्ट हुआ है। मायावती का जो वोट है ना, वो बीजेपी को शिफ्ट हो गया है। मायावती ने बहुत पेशेंटली अपना बदला लिया है, और उन्होंने, उनकी वोट बैंक जो है वो बीजेपी को शिफ्ट हुई है। और एक चीज मैं बोलना चाहती हूँ यहाँ पे, मैंने पंजाब में मेरे पहचान के कुछ है, उनसे फोन पे बात किया। तो पंजाब में आम आदमी पार्टी जीतने का एक रीजन ये है कि पंजाब के लोग कहते हैं हम कांग्रेस से फेड अप है,
हम अकाली दल से फेडअप है, और अकाली दल के साथ बीजेपी होने की वजह से बीजेपी को भी ये लोग अच्छे नजर से नहीं देख रहे, एंड उन्होंने एक नया पार्टी को दिया क्योंकि ये लोग फेडअप है। अरविंद केजरीवाल बहुत अच्छे हैं प्रोपागेंडा में, तो अब देखा जाएगा वो डिलीवर करते कि नहीं करते, मगर पंजाब के लोग जो है ना तंग आके उन्होंने वोट दिया है। ये कोई स्वीप नहीं था, कोई कुछ नहीं था, ये था कि फ्रस्ट्रेटेड पीपल ऑफ पंजाब हैव वोटेड फॉर चेंज। दे डोंट वांट टू वोट फॉर कांग्रेस और दे डोंट वांट टू वोट फॉर अकाली। They don't want to, they are fed up and that's why they have voted. So ये जो वहां पे अकाली एंड कांग्रेस का जो स्पेस है, अभी मुझे खुद को ये लगता है कि अब बीजेपी will move into that space. That is what BJP has done in Bengal also. टाइम लगता है क्योंकि ओवरनाइट नहीं हो सकता है। बंगाल में आप लोग दोनों बंगाल से, मैं भी बंगाल से हूँ, बंगाल में भी टाइम लग रहा है। ऐसा नहीं है, यहाँ पे इस बार 2 करोड़ के ऊपर वोट्स बीजेपी को भी मिला है बंगाल में, तो मगर वो स्टेप वाइज होता है, वो स्टेप वाइज होता है। एंड इन फ्यूचर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि यस, बीजेपी इज गोइंग टू गो ऑल आउट इन पंजाब बिकॉज बीजेपी हैज लेफ्ट दैट अकाली group and Akalis were not actually allowing BJP to come forward. जो चीज महाराष्ट्र में भी बीजेपी को फेस करना पड़ रहा था एंड होगा। एंड बीजेपी का एक चीज है, वो अपने साथियों को नहीं छोड़ता है, साथी छोड़ के चले जाते हैं तो बीजेपी तारीफ करता है। एंड आज समय ज्यादा नहीं रहा, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, फिर इकट्ठे होंगे हम लोग। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस हम सबको, क्योंकि हार्ड वर्क, डेवलपमेंट। ऐसा वन थिंग जस्ट आई हैड टू से, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मायावती का कुछ सॉफ्ट कॉर्नर बीजेपी की तरफ है, मर्ज होना चाहती है, कुछ ऐसा हमें लग रहा है। आज भी उसने जो अपना कमेंट दिया, थोड़ा सा फील हो रहा है, लेकिन अभी बहुत जल्दी होगा क्या ना। ओके, थैंक यू। नहीं, वो हम भी फील कर रहे हैं। चलिए, वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। एंड मैं श्रोताओं को ये कहना चाहती हूँ, श्रोताओं, विदिशा को तो आप लोग अप्रिशिएट पहले भी कर चुके हैं, कविता जी पहली बार आई है, तो वो ग्राउंड रियलिटी बता रही हैं। आई थिंक आप लोग एंजॉय करेंगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।